A very good afternoon to everyone. Welcome you all to this new initiative called Let's Think Business (LTB). Right. So as we were asking, what is that comes to your mind when we say LTB? What should be all about? We have Sai Teja with us, who'd like to put forth their thoughts. Yes, please. You can unmute yourself. Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes. Very good afternoon. Very good afternoon. How are you doing, sir? Hello. Doing really well. Yeah, right. Thank you, sir. Sir, thank you for giving me the opportunity first. Sir, I would like to put forth my views. First of all, business in the sense anything which has to be commercialized and put forth into the market as per the market needs. So I guess if I start about business, first of all, for any building material or for any building unit, material plays a very crucial role. So now, since there are many frontiers and many things which are coming into the market, which are actually governing sustainability and taking sustainability into consideration. So like there are many norms, and we know that there are many materials which are being confined to the papers and which are not being actually brought out into the reality. If you actually compare India with the developed countries, I see there are many videos, sir. Actually, if you take Australia or UK, there are many fibrous materials or many good materials. Say, for example, ferroc is a building material which is being used in America from a lot of years. So no one here in India doesn't even know about ferroc, which is a green building material and which is more a sustainable cementitious material than cement. So I guess as per the market norms, they all should come out, and I guess know-how is actually doing a great job putting forth these, and I guess know-how will break all the barriers and would definitely commercialize the materials as per the market norms, sir. Right, great. Thanks a lot for that remarks. Means a lot, and we'll be coming back to you to see some of your work done. So yes, before we ask Vivek Borate sir to take over, we'll just like to put a brief concept on what is this all about, right? So when we talk of a business model, right? When we say that we want to start a business, majorly business can be of two types, we all know, right? Some existing business which is running on for years and years, something that has been in existence since many years. And then there's something called as startups, right? What's the basic difference between a business and a startup is that startup looks to solve a problem in a way that no one has done before, right? Some innovation, some research that probably goes into it. Now, not necessarily always business has to be something on innovation. Many times there is something called as reverse engineering as well. That is, now for example, say Motorola started the mobile handset concept, and the number of companies came in, did the reverse engineering, understood how did they do it, brought in some optimization, some value engineering, tried to do it in a better way, and today we see so many companies out there. Goes on with every industry that you see, right? There hardly is any monopoly जहाँ पे एक चीज कोई एक ही कर सकता है, right? That rarely happens. That's not usually the case. So business can be done either with an innovation or taking clues from something that already exists, just can be a duplicacy of it in a better way, or can be a completely new concept. So business, as we say, passes through three stages: problem statement, possible solution to it, and overall viability of it. Now, if the story starts from problem statement, and we see many out there, we want to do startup, we want to do business, but problem statement nahi samajh mein aa raha hai. And then many of us would probably try to Google it. What are the good business ideas? Well, if any blogger knew what are good business ideas, instead of blogging, he or she would do that business, right? So business ideas are not found on blog on anything. Problem statements, business ideas mainly come from own experience. That's the starting stage. You should be aware of what all is going around. You need a lot of industry exposure. And then when watching the work going on in the industry,
to come across some ideas. ये काम ऐसे कर रहा है तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, which can bring in optimization on either of the one front, say time, cost, quality, environment impacts, right? Once you get hold of a problem statement, there would be number of thoughts in your mind. आज एक टॉपिक अच्छा लगेगा, कल कोई दूसरा टॉपिक अच्छा लगेगा, right? Whereas that should not be the case. We should always focus on, we should always stay focused. That's one thing. Possible solution कैसे निकलेंगे? For that there are trials and errors, and mainly this is the area where know-how would be looking to guide you with experts, with the resources, with the industry resources. This is the area where we would like to help you with working out possible solutions. Now, as Saiteja rightly said, there are number of projects in the college which stay only on piece of paper and do not get really converted into business model. That is, they get stuck at the possible solution statement and they don't get converted to what we say as overall viability checks. तो पेपर पे तो ठीक हो गया, और उसकी टेक्निकल वाइबिलिटी, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, उसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी क्या है? If we pass our business, if we pass our solution through this various checks, it can be converted to a business model, right? So what's the problem statement in case of a cell phone? Long distance communication, solution was the electromagnetic waves and all of it could be clubbed into a device. Overall viability would must have passed through so many technical checks, through so many economical checks, through so many laws of the land. Are you allowed to do that? What is the cost incurred in it, right? So many a project in the college days get stuck at the level 2. Here we at Know-how want to support you in level 2 and level 3 with your active participation, right? So that's mainly the concept that we are looking at, and we have our expert Vivek Borate sir, who very well believes in the same thing, that first of all, let's be engineers first. Let's be perfect engineers first. So what's the difference between an engineer on paper and an perfect engineer? Engineering करते आनी चाहिए, right? We should be good with the technical data. We should be sound. We should be aware of what all things are going around, right? And we should be able to do some scientific analysis on it and come out with some solutions to it, right? There are few examples of it as well, right? Before taking them, we would like to welcome Vivek Borate sir. Sir, a very warm welcome to you and a very good afternoon to you, sir. I would say a different afternoon rather. Yes, thank you, Dipesh sir, and good afternoon to everyone. Absolutely. So, sir, as we are talking on this, before taking the discussion further, would ask you to throw some light on some of the examples that you usually give in our courses, of which we have taken here two examples of couplers versus lapping and second of the curing compounds, sir. So, sir, I request you to throw some light on this particular two examples, and then probably we can take ahead with what exactly LTB is, what are you supposed to do, because we feel that this couplers versus lapping and the curing compound are actually two really good examples of end products of what happens when students start thinking about research. So over to you, sir. Thank you, Dipesh sir. First of all, we take the case of that curing compound. That is more familiar, I think, for everyone. Curing is just normal, just पानी मारना है, बाकी और कुछ नहीं है. क्योंकि लैपिंग में बहुत सारा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, बट क्यूरिंग में तो कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल पानी लेके पानी मारना है. अभी आई थिंक कि ऑल आर इंजीनियर्स एंड दे नो कि व्हाई क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड. इज इट रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन व्हाई क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड? You all can interact with sir. You can unmute yourself and you all can interact. You must be known, no? Yes, sir. Yes. So curing generally that conventional method is what? Curing it with water only. बराबर है? हम लोग पानी मार के उसको क्या करते हैं, हीट ऑफ एडिशन जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं उसको बाय pouring water or
स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन इट। अभी होता कैसा है कि हम लोग जस्ट नॉर्मल है ना कि अब आप इमेज में भी देख रहे हो कि वो बंदा पानी मार रहा है, उसके पीछे ना अंदर एक उसने ये किया है क्या, वो वेट गनी बैग्स भी लगाया उसने। और वेट गनी बैग जो लगाते हैं, गनी बैग्स जो वेट होता है वो कम से कम मतलब 1 घंटे तक वो गीला रहेगा, मॉइस्चर उसके अंदर कंटेंट रहेगा, सो दैट कि उसको 1 घंटे के बाद वापस आके पानी मारना है। तो 1 घंटा मतलब एक बार पानी मारेगा 10 मिनट के लिए, वापस वो 40 मिनट 50 मिनट घूम के आएगा, फिर वापस मारेगा। तो इतना टाइम में वो दूसरा काम कर सकता है बराबर। अभी होता कैसा है कि अगर सपोज ग्राउंड पे तो आपको इजी है बराबर, जैसे बिल्डिंग ऊपर 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 जाएगी तो क्या होगा कि आपको उसके लिए वो पानी ऊपर तो आएगा नहीं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पंपिंग करना पड़ेगा, पंप से पानी ऊपर आएगा, फिर वापस क्या करना पड़ेगा आपको, आपका लेबर एम्प्लॉयड करना पड़ेगा स्पेशली फॉर क्योरिंग, उसको आखा दिन उस पर ही काम करना पड़ेगा, सब कॉलम को पानी मारते बैठेगा, मतलब एवरी कंक्रीट सरफेस को पानी मारते बैठेगा। मतलब आपने क्या किया कि मैन एम्प्लॉयड किया, फिर आपने एनर्जी यूज की, वापस पानी कहाँ से आएगा, सपोज पानी नहीं है, ये बोरवेल करना पड़ेगा या फिर टैंकर से मंगाना पड़ेगा। मींस ऑल थ्री थिंग्स वी आर बाइंग बराबर, मतलब हम लोग खरीद रहे हैं या बना रहे हैं। अभी क्यूरिंग करने के लिए अपने को 3 एजेंसी से अपने को पाला पड़ता है, एक लेबर है, एक वाटर, एक इलेक्ट्रिसिटी है। फिर अगेन क्या आएगा आपका दूसरा एक एजेंसी आएगा जो प्लम्बिंग मैकेनिज्म आएगा, जो नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचाने वाला। ग्राउंड की बात छोड़ दो, ऊपर आप जाएंगे तो ये सब चीजें आपको एक खाली क्यूरिंग करने के लिए इसको इन्वॉल्व होगी, और जनरली कॉस्ट पे भी आती नहीं है बराबर। तो अभी ये चीज के लिए अभी थोड़ा सा ऑलमोस्ट कैन से कि इंडियन कैलामिटीज में ये एकदम ये हुआ नहीं है, क्या बोलते उसको, फैमिलियर हुई नहीं है प्रोसेस, कौन सी, क्यूरिंग कंपाउंड वाली प्रोसेस, क्योंकि सबका कहना है कि इधर पानी बहुत है, क्यों हमको ये मारना है, क्यों रिस्क लेना है। लेकिन आपने अगर उसमें अगर चैलेंज लिया नहीं, आपने अगर वो टैली किया नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा मतलब फेल है। अभी ये वापरने के बाद एक बार तो वो आप वापर के देखना चाहिए कि वो कैसा चीज है, कैसे ऐड करता है, फिर उसका स्ट्रेंथ आपने चेक भी करना चाहिए, क्यूब भर के आपको चेक भी करनी चाहिए, कि 2-3 बार चेक करना चाहिए, सो दैट ही विल कम टू नो कि अपने को स्ट्रेंथ तो अफेक्ट होता नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ अफेक्ट होता नहीं तो इसके पीछे अपने को कितना पॉजिटिविटी है। सी अभी आप जैसे हम लोग शटर ओपन करते हैं, मतलब डी शटर करते हैं क्या कॉलम, तो डी शटर करने के बाद क्या, तो विद इन 1 आवर अपने को ये कोट करना पड़ता है पार्क्योर 200 का, इस केमिकल प्रोसेस है। अब ये कैसा है कि ये केमिकल क्या करता है, ये केमिकल एंड कंक्रीट के सराउंड एक फिल्म क्रिएट करता है बराबर। ये फिल्म क्या करती है कि सपोज आपको पता है कि हम लोग अगर सपोज पानी गर्म करते हैं, उबालते हैं और उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे तो क्या होगा, ढक्कन आप खोलेंगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा वेपर आएगा बराबर। सेम प्रोसेस ये ऐड करता है कि जैसे कंक्रीट एक्सपोज होता है तो पूरा हॉट रहता है, उसके ऊपर अगर आपने तुरंत ही केमिकल कोट कर दिया तो क्या होगा, उसमें से जो पानी बाहर जाता है पानी बाहर जाने को देगा ही नहीं, और जो श्रिंकेज के क्रैक्स फॉर्म होने वाले हैं वो नहीं आएगा, और वो सेल्फ क्यूरिंग होता है, वही पानी से वो सेल्फ क्योर होएगा। तो इसमें क्या होता है कि उसका स्ट्रेंथ भी बरकरार रहेगा, और साथ में ना आपको जो daily for 7 days you have to use this all this process for one column or several column, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कि अगर ये केमिकल आपको कैसा होता है कि आपने डिशटर कर दिया, डिशटर करने के बाद आपको हैकिंग करना है, हैकिंग करके आपको क्या करना है, वो केमिकल को जस्ट अप्लाई करना है, और अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ वो भी आपको ना क्लियरली नेकेड आई आपको मालूम पड़ता है कि इट शोज कलर कि मारा है कि नहीं मारा है, और इसका टाइम ड्यूरेशन कैसा है कि विद इन 1 आवर उसको मारना है। अगर 1 आवर उसको मार के हो जाएगा तो आपको क्या है कि वापस 7 डेज बाद में उसके तरफ आपको देखना भी नहीं है कि आपको क्यूरिंग करने के लिए। बट इन नॉर्मल केस क्या होता है कन्वेंशनल में, आपको उसको रोज नहीं 1 घंटे के बाद उसको पानी मारना पड़ेगा ना, एवरी घंटा टिल 7 डेज। तो अभी ये जो ड्यूरेशन है आप इमेजिन करना कि ये ड्यूरेशन का टाइम का कंजम्पशन, फिर अगेन टाइम कंजम्पशन फॉर दैट पर्टिकुलर लेबर, फिर वापस आपका पानी का कंटेंट और इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तीनों चीजें है ना, इलेक्ट्रिसिटी पानी तो लगेगा ही नहीं पहले से फ्रॉम डे वन। अभी ये जो बंदा लगेगा जो लगा रहा है, अभी एक कॉलम को लगाने के लिए उसको है ना 10 से 15 मिनट लगता है, एक मैक्सिमम 10 मिनट लगता है एक कॉलम को लगाने के लिए। अब आप इमेजिन करना कि एक मतलब सपोज मैंने उसका पूरा दिन का भी वेजेस पकड़ा तो पूरा दिन में उसने जितने कॉलम भरते उतना लग गया, और फिर एक दिन में इतना 50-60 कॉलम कोई भरता नहीं नॉर्मल बिल्डिंग, एक दिन में कितना होता है मैक्सिमम उसका 10-12-15 कॉलम होता है, तो हाफ डे उसका जाता है उसके अंदर, कितना हाफ डे। अभी ये हाफ डे जाने के बाद क्या होगा, फिर मतलब आपने उसका जो सेव था मतलब 7 दिन उसको आपको क्यूरिंग के लिए फुल डे उसको पगार देना पड़ता था, अभी क्या करना पड़ेगा आपको, खाली उसको हाफ डे देना पड़ेगा, फिर बाकी जो है उसको बाकी का जो 6.5 दिन है आप उसको दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हैं ना सेम लेबर को बराबर। तो ये अगर ये चीज आपने कंपेयर की ना तो आपको क्यूरिंग कंपाउंड कभी भी महंगा नहीं लगेगा, कभी भी नहीं। इनफैक्ट आप क्या बोलेंगे मेरे को तो हर चीज पे करना है, इवन मेरे को प्लास्टर पे भी करना चाहिए, आप इधर तक सोचेंगे कि अभी ये जो अभी चीज है कि जस्ट
अभी भी है ना कितने सारे ये है अपनी कंपनीज है, बिल्डर्स है और डेवलपर्स है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा। क्यों मालूम है ना, कि कोई यूज नहीं करता है, कोई भी चीज नहीं आती। जैसे अभी सर ने एग्जांपल दिया मोटरोला, भाई मोटरोला पहले कंपनी आई थी तो उसके बहुत सारे बिक गए थे ना पीस। अभी मोटरोला कल आएगा तो कोई बोलेगा नहीं, वो डब्बा है, बड़ा है, जाड़ा है, हेवी है, ऐसा करके उसको आप रिजेक्ट करेंगे। लेकिन इनिशियल लेवल पे तो सबने लिया था ना ये इनोवेशन के तौर पर कि क्या चीज है, देखे तो सही, इस बहाने लोगों ने खरीदा भी था, तभी महंगा भी था वो चीज। अभी लेकिन कैसा है कि अगर ये आप कंसल्ट करेंगे, क्यूरिंग कंपाउंड है या वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस केमिकल्स भी है, अगर आप वापरते हो तो उसमें क्या होगा, अगर वापरेंगे तो आपको पता चलेगा, और आप वापरा, आपको रिजल्ट आया, तो यू शुड टेल टू अदर्स आल्सो कि नहीं देखो ये चीज वापरने से फर्क पड़ता है, ये चीज करने से फर्क पड़ता है। क्या होता है कि अगर देखिए अगर मैंने वापरा और मैंने मेरे पास से रख दिया तो वो एक्सपोज नहीं होगा, किसको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर मैंने दुनिया को बता दिया क्या होगा, सब लोग उसको रिक्वायर कर, मतलब सबको उसको ऑर्डर देगा, सब लोग वापरने को जाएगा, सब क्या करेगा अपना अपना कॉस्ट मतलब बचाने का कोशिश करेगा। तो क्या अल्टीमेटली हम लोग जो पावर और वाटर है ना वो सेव करने के टुवर्ड्स जाएंगे सब लोग। तो ये भी कैसे नेचुरल रिसोर्सेस है, अगर उसको आप सेव करते हो तो आपने मतलब एक वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेव योर नेशन। तो ये भी आपको चीज देखना है कि और दूसरी बात जो दैट रिलेटेड विद योर बिजनेस, अभी बिजनेस के लिए कैसा होता है कि जो टाइम जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है ना उसका जो प्रायोरिटी है वो आपको समझना चाहिए कि ये अभी ये चीज में ये कैलेमिटीज में क्या क्या चलने वाला है, क्या क्या प्रोडक्ट चलने वाले हैं, क्या क्या थिंग्स ऐसा होने वाला कि जो मैंडेटरी है, जो मैंडेटरी लेवल पर है, अगर उसमें आपने अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किया तो क्या होगा मालूम है कि बिजनेस शुड बी देयर हम खास। मैंडेटरी क्राइटेरिया में कैसा होता है कि आपको पता है ना कि घर तो लगने वाला ही है किसको भी, अभी घर लगने वाला है तो कंक्रीट भी लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। अगर कंक्रीट में आप कुछ इनोवेशन करके जाएंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी यूज्ड, बराबर। लेकिन अगर आपने क्या किया समझा कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है, आपने ना मतलब सपोज गोल्ड स्मिथ के आप धंधे में चले गए, बराबर, और बहुत अच्छा हार बनाया, बहुत अच्छे रिंग्स बनाए, वो बनाए, लेकिन वो कैसा, इट इज नॉट कॉल्ड मैंडेटरी ना, वो कैसा है मतलब आपका लग्जरी है कि वो कभी जिसके पास ज्यादा पैसा वो खरीदने को जाएगा, लेकिन जो नहीं भी खरीदेगा वो मरेगा नहीं। लेकिन जो शेल्टर है वो क्या है मालूम, वो प्राइमरी नीड है, वो आपको लगना ही है, क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगेगा, घर में भी लगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक एवरीवन, और यू शुड गिव शाबाशी, व्हाई, बिकॉज़ वी आर सिविल इंजीनियर्स। क्योंकि ये चीज है हम लोग जो कर रहे हैं एवरीथिंग, आप अगर इंफ्रा में जाओ या फिर रेजिडेंशियल में जाओ, कमर्शियल में जाओ, जो भी हम बन रहा है ना, दिस इज ओनली फॉर यूज ऑफ पब्लिक, बराबर है, हम दूसरे के लिए कर रहे हैं ये चीज। और वो भी कैसे कि मैंडेटरी चीजें है, जो मैंडेटरी चीज है उसमें अगर आपने इनोवेशन किया तो देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर उसके लिए आपको क्या करे, मार्केटिंग करना पड़े, नथिंग, वो सामने से पब्लिक आपके पास आएगी। लेकिन कैसा होना चाहिए, मतलब आपका जो अप्रोच है एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, और आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, नीड पता होनी चाहिए। अभी कैसा प्रायोरिटी है कि देखिए प्रोडक्ट एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, नो डाउट, उसके बाद उसका कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए, बराबर, फिर उसके साथ वो कितना एनर्जी सेव कर रहा है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अभी एनर्जी सेव कर रहा है, ये कॉस्ट इफेक्टिव, इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज जो जरूरी है ना, ये वो टेक्निकल भी होना चाहिए कि मतलब वो एक्चुअली कैसा है कि जो क्यूरिंग का सपोज लेट्स ये क्यूरिंग का है, तो क्यूरिंग का पूरा का पूरा पर्पस सर्व कर रहा है, क्योंकि उसका फाइनली जो स्ट्रेंथ है आफ्टर 77 टू 28 डेज वो टैली हो रहा है, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है। अगर ऐसे अगर आप उनके सामने ये रखेंगे क्या रिजल्ट्स प्रूफ, तो क्या होता है कि जो नहीं करने वाला आदमी वो तो सोचेगा ना चलो एक बार तो लगा के देखिए, और जैसे एक बार लगा के Exactly. देखे तो फिर अभी आपको एक स्टेप अप मिलता है ना, आप अपने आप ऊपर चढ़ेंगे। अभी तभी आप क्या करेंगे, अभी ये मैंने प्रोडक्ट ये लिया है, अभी ये प्रोडक्ट इसके लिए काम करता है, और दूसरा ढूंढू क्या, और तीसरा ढूंढू का, और चौथा ढूंढू क्या। अभी देखिए अभी इसमें ये खाली अभी केमिकल ही आप देखिए, अभी केमिकल में मालूम है ऐसा भी केमिकल ऐसा आया है कि आपको पता है कि एसआरआई, एसआरआई मींस सन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अभी सन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या चीज है कि जो मतलब धूप आती है, धूप रिफ्लेक्ट करने का ये मतलब जैसे जस्ट लाइक ग्लास, अभी ग्लास के ऊपर धूप गिरा तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा ना, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होगा, तो जितना एब्सॉर्प्शन होगा ना उतना हीट अंदर ट्रांसफर होगा, और जितना आपको क्या करेंगे रिपेलेंट होगा वो क्या करेगा, धूप रिफ्लेक्ट करेगा और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अभी देखिए ये भी अगेन आपका ये है प्रायोरिटी बेस है, नीड है, क्योंकि जैसे वो मैक्सिमम रिफ्लेक्टेंस ऑफ हीट होगा तो क्या होगा कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, you need not require more high level fan और high level AC। तो ये भी अगेन सेविंग ऑफ योर पावर है। तो ये भी चीजें है ना मतलब केमिकल्स में आ रही है, जो एक्सटर्नल पेंट होता है ना उसके अंदर भी ये चीजें अभी इन्वॉल्व कर रहे हैं सब लोग,
कि एक्सएल पेंट अपने नॉर्मल क्या था अपना मेन एम कि वो खराब नहीं होवे और उसके अंदर से मतलब थोड़ा सा वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए सो दैट कि मतलब पानी अंदर नहीं आवे। अभी इसके ऊपर जाके है ना दे आर ट्राइंग फॉर दैट कि थोड़ा रिपेलेंट भी हो जाए। अभी रिपेलेंट होने से क्या हो रहा है कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होने से उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो रिड्यूस होता है। तो ये ऐसे ऐसे चीजें है ना अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। जो केमिकल्स भी है ना आपको इस तरीके से आपको यूज करना है। अदरवाइज कैसा होता है कि हम लोग एसटीपी करते हैं तो एसटीपी में कैसा है कि जितना केमिकल्स आप कम यूज करेंगे उतना वो मोर टुवर्ड्स एनवायरमेंटल जाएगा, मोर टुवर्ड्स ग्रीन जाएगा। तो इधर कैसा है आप केमिकल यूज करो लेकिन अगर उसका इफेक्ट पॉजिटिव है तो यू कैन डेफिनेटली यूज। मतलब ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिवली अगर है मतलब आपको कोई उसके अगेंस्ट में आप कोई भी रिसोर्स या एनर्जी आप सेव कर रहे हो ना तो वो केमिकल कभी वापरना बेटर है। जैसे अभी कंक्रीट के लिए है हम प्लास्टिक वापरते हैं, रिटायर्ड वापरते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आता है ना, इसके लिए देयर इज नो बैन कि रिजल्ट अच्छा है करके हम लोग वापर रहे हैं। ये अननेसेसरी केमिकल डाल के उसको ये करना वो अच्छा नहीं है क्योंकि आप मैक्सिमम केमिकल भी वापरेंगे तो उसका उल्टा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है स्किल के ऊपर। तो ये भी चीज आपको खास देखनी है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये स्टेप होगा कि मतलब केमिकल्स आप अच्छे से यूज कर सकते हो लेकिन Yes. आपको उसके थोड़ा स्टडी भी लगेगा। इज इट एनीथिंग अबाउट दिस? फिर हम लोग जाएंगे उसके ऊपर लैपिंग के ऊपर। Right. So yeah, this is one example. This is just the example, friends, that we are today telling you here, just to give you an idea about end results of our journey. Right. So such can be our end results of our journey, which can really take the industry forward and us as well forward in the process. So I hope this example is okay with everyone. There's one more example, and we'll be taking that now, and that is lapping versus couplers. Yes, sir. I think everybody knows now why lap is required. I'm not asking you where to be located. It will take time, but why lapping is required? Can anyone Yes, answer? Avijit, It's very quickly. simple. Yes, Avijit, quickly. Yes, sir. Yes, sir. Because the steel length हमारा 12 मीटर ही होता है, तो obviously building Yes. would be greater than that. और वो कांस्टेंट होने के कारण अपने को लैप करना ही पड़ता है, बराबर? अभी मतलब इतना पक्का है कि लैप करना ही है। एवरीवेयर देयर शुड बी लैप, बट कॉलम लैप इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज बाकी के लैप तो आप इजीली मतलब हॉरिजॉन्टल वन है लेकिन फिर भी आप उसमें भी वापर सकते हो। लेकिन होता कैसा कि जो हॉरिजॉन्टल मींस बीम में और स्लैब में हम लोग कम से कम यूज करते हैं, लेकिन कोई भी बिल्डिंग में है ना कॉलम में तो डेफिनेटली लैप विल बी देयर। कोई भी रूम कोई भी बिल्डिंग में कॉलम में लैप होना ही, उसके बिना बिल्डिंग होना ही नहीं। अभी देखिए कैसा होता है कि सपोज आपको पता है कि हम लोग जो लैप करते हैं नक्की वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? एनी आइडिया? जो लैप लेंथ है क्या चीज के ऊपर वेरी होता है? Yes, Mayur. सपोज मैं बोलूं डायमीटर ऑफ बार। नो, डायमीटर नहीं, डायमीटर पे तो डिपेंड है लेकिन दैट इज व्हाट नहीं क्या है? नो, हाइट ऑफ कॉलम। यस, नो, सब कॉलम है। no, simple, don't go Simple answer. Come on, simple answer. The grade of The concrete. load. Exactly, yes. Yes, Rutuj. Grade of concrete. हाँ, very nice. अभी grade of concrete से क्या होता है? As you are using more upper grade, means higher grade, your lap length should be yes less. और your lap length should be higher. बराबर? मोर हाई। Yes. So what will happen? कि सपोज अगर मेरा नॉर्मल ग्रेड पकड़ा जो अभी चल रहा है करंटली दैट इज M25, अगर M25 मैंने वापरा है सपोज आपको आया है सपोज M50 है या सॉरी 60D या 50D दिया है आपको लैप, बराबर? तो व्हाट विल हैपन सपोज मेरे पास अगर 25 का डायमीटर का बार है 25 तो उसका लैप लेंथ कितना आएगा? सपोज से 50D, तो 50D है तो 25 का डायमीटर रहेगा, उसका लैप लेंथ कितना आएगा? दैट इज 1250। इज इट? अभी 1250 लैप लेंथ आपको एक बार के लिए आएगा, बराबर? और हमेशा है ना वो जब तक सपोज अगर एक कॉलम के अंदर 30 बार है तो 30 बार के लिए ना वो 1.5 मीटर आपको देना पड़ेगा, बराबर? और 1.5 मीटर 30 बार के लिए देना पड़ रहा है तो क्या होता है कि आपको है ना 1.5 मीटर जो दैट इज योर 45 लैप meters. लेंथ इनटू 45 meters. अराउंड यस 45 मीटर्स आपको क्या होगा मालूम है? बार जाएगा, मतलब 45 मीटर्स अराउंड 4 बार्स, 4 फुल Yes. लेंथ बार। इज इट? कि 1 बार ऑफ 12 मीटर सो इट्स 48 बार 48 मीटर, सो ऑलमोस्ट 4 बार आपको है ना खाली
एक कॉलम के लिए जा रहा है। अब आप इमेजिन एक करना, फ्लोर। जस्ट काउंट इट सर मेरे लिए, कि अगर एक बार है 12 मीटर का, बराबर 12 मीटर का बार है, तो 12 मीटर इंटू 3.85 करना। हाउ मच इट इज? 12 meter 12 into 3.85. 3.85 is what? Can you give me answer? yes, Are you come on aware of quickly. 3.85? What is that 3.85? yes, quickly अब की बार anyone. हम लोग ये भी आप yes, थोड़ा सा इसमें भी जाएंगे, रेट्स में, कॉस्ट्स में. 3.85 सिंपल आंसर है। क्या है? 12 इज मीटर, बराबर। हमको क्या करना है? पूरा वेट निकालना है। तो 3.85 इज व्हाट? दैट केजी पर मीटर मीटर, दैट इज weight of bar per meter. Getting me? 46.2. The answer is 46.2. And the answer is okay, but what is 3.85? 3.85 is kg what? per meter. The weight of 25 mm diameter bar per meter, is it? So 3.85 into 12, the one bar का कितना हो पूरा weight is 45 ना? How much you said? yes, 46.2 yes, sir. 46. हाँ, into 4 करो. How much? 184.8. 184.8. 184, yes, 184.8 इंटू आपको करना है किसको, उसको अराउंड करो आप 45 या 42 करो, चलो आज 42 में हो सकता है, इंटू 42 क्या होगी आपको पता? यस, टोटल ऑल 184 इंटू 42, हाउ मच? 7761.6. 7761 मतलब लगभग 7,500 पौने 8,000 आई सपोज, बराबर है? Yes sir. Yes sir. यस, मींस अराउंड 8,000 है ना, पर लैब पर फ्लोर जाएगा, आप समझे, पर कॉलम। एक आपको इतना बार एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, इज इट? समझ में आई बात? बराबर, मतलब अभी 30 बार का कॉलम था, तो 30 बार के कॉलम में क्या हुआ कि हमने जो लैपलिंग दिया है, वो लैपलिंग कितना आया? लगभग अराउंड 4 बार। भाई 4 बार का कितना वेट हुआ? दैट इज अराउंड हो गया आपका जो कॉस्ट आया आपका, दैट इज व्हाट? 8,000 में पौने 8,000 उसका कॉस्ट आया। 42 इज व्हाट? 42 इज रेट ऑफ स्टील पर केजी, बराबर, मींस 42,000 रुपीस पर टन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। उसका मतलब क्या बोलते हो आप उसको, ट्रांसपोर्ट के साथ, बराबर। तो आपको देखिए कितना फर्क पड़ता है एक कॉलम के पीछे। अगर सपोज एक बिल्डिंग रहेगी, छोटी बिल्डिंग रहेगी, रहेंगे कम से कम 60, अगर ये नहीं 8,000 नहीं करना है, एवरेज पकड़ो आप, इवन 5,000 भी आप पकड़ा तो मतलब एवरेज, किसको कम किसको ज्यादा, तो 5,000 इंटू 60 करेंगे तो कितना हो गया? 3 लाख रुपीस। यस, तो 3 लाख रुपीस पर फ्लोर, इज इट राइट? right, इज इट राइट? तो यस, तो 3 लाख इंटू पर फ्लोर। अगर मेरा बिल्डिंग 12 माले का तो व्हाट विल हैपन? 3 lakh into 12. 36 lakhs. 36 लाख। तो 36 लाख मतलब ऑलमोस्ट, मतलब आधे फ्लैट की तो कीमत हो जाएगी ना। अगर मैं फ्लैट बेच रहा हूँ तो आधे फ्लैट की तो कीमत हो जाएगी वो। तो वो मतलब ये कितना, मतलब ह्यूज अमाउंट है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो तो व्हाट विल हैपन? वो मल्टीपल में जाएगा। तो ये चीज जो है कपलर की, देखिए अभी कपलर क्या होता है, कपलर इज दैट इज कॉस्टलीस्ट थिंग, लेकिन कपलर के लिए क्या है कि अबाउ 28 ऑनवर्ड्स यू कैन यूज कपलर, बराबर। अभी जो कपलर जो रहता है ना, वो कैसा रहता है, 75 से लेके 150 तक होता है, मतलब 75 भी चलता है। अगर लोअर डायमीटर है कितना, 28 है, 32 है, तब तक अगर आपने 28 से 32 के लिए लोअर, आप 75 टू 80 भी चल सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर 40 का है, 44 का है, तो आपको वो 150 लगता है उसका, ये क्या लेंथ। तो उसमें होता कैसा है, क्यों, व्हाई इट इज गेटिंग कॉस्टलीस्ट? तो उसको है ना, पहले तो आपको देख रहे हो किसमें, इमेज में, कि जो कपलर है वो एमएस का होता है, उसमें आपको अंदर से तो थ्रेड मारना पड़ता है। अभी अंदर से थ्रेड मारना पड़ता है, दैट विल हैपन ऑन मशीन। कहाँ से होगा वो? डायरेक्टली आपको उधर से आएगा, कहाँ पे, जहाँ पे आप ऑर्डर देंगे वो करके देगा। लेकिन व्हाट अबाउट स्टील? स्टील जब आप ऑर्डर करते हो तो वहां को थ्रेड नहीं आता है, आपको थ्रेड है ना इधर जगह पे आके मारना पड़ेगा ऑन साइट, एंड दैट इज वेरी कॉस्टलीस्ट थिंग। कि उसको आटा मारना, थ्रेड करना इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि उसको आटा रहेगा तभी उसके अंदर घुसेगा ना, वो कपलर में घुसेगा कभी अंदर, जस्ट लाइक जीआई पाइप। जीआई पाइप को भी मालूम है आपने, कभी अभी तो कोई वापरते नहीं है, लेकिन जीआई पाइप में अपने को लाके उसको आटा मारना पड़ता है साइड पर, और फिर कपलिंग रेडीमेड आता है, वो कपलिंग के अंदर घुसाना पड़ता है।
सेम थिंग इधर होता है, लेकिन होता कैसा है कि ये जो आटा मारने की जो मशीन है बहुत कॉस्टली है और मारने के लिए स्पेशल आदमी मतलब ये नॉर्मल प्लम्बर नहीं मार सकते इसको, उसके लिए आपको उनको स्पेशल टेक्नीशियन ही रहते हैं, तो वही लोग लगते हैं आटा करने के लिए। फिर वापस अगेन मारने के लिए आप जैसे हम लोग ये वापरते हैं होल टाइट वापरते हैं फॉर जीआई पाइप दैट ग्रीसिंग मटेरियल इंसुलेशन मटेरियल, वैसे ही इसमें भी वापरना पड़ता है केमिकल और फिर आपको टाई करना पड़ता है। अभी ये टाई करने का प्रोसेस है ना उसमें भी मतलब आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मतलब स्टेजिंग लगता है। अभी देखिए अभी बार का लेंथ अगर आप लैपिंग करते हो तो बार का लेंथ कम से कम मतलब 3-4 मीटर तो पक्का रहेगा, 4 मीटर का बार पक्का रहेगा। अभी 4 मीटर का बार इमेजिन करना कि अगर ये 75-80 mm पे रेस्ट होता है तो ऐसा ही रेस्ट होगा नहीं ना, क्योंकि उधर रेस्ट होगा पूरा का पूरा बाल बकल होएगा, मतलब नाचेगा इधर से उधर, पूरा स्विंग होगा जैसा चाहिए वैसा। तो ये रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा उसको स्टेजिंग करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एच फ्रेम और कपलॉक। मतलब स्टेजिंग मतलब क्या, सपोर्टेड बार, तो बार खड़ा रहेगा नहीं। अभी लैपिंग में कैसा होता है मालूम है, वो 1.5 मीटर या 1.25 मीटर वो जूने वाले बार को ओवरलैप होता है, तो जूने वाले बार को एक्जिस्टिंग बार को ओवरलैप होता है तो क्या करता है उसको टाई दिखता है तो कम से कम वो खड़ा रहता है, तो उसको ओवरलैप जाता है। यहाँ पे ओवरलैप है ही नहीं, हार्डली है, ओवरलैप है ही नहीं, खाली ओवरलैप कौन सा है, खाली कपलिंग का ओवरलैप है, तो उतना पुरता नहीं, पूरा का बाल स्विंग होता है। अगर बाल स्विंग होएगा तो उसकी आटी निकलने का डर रहता है, तो इसमें किन सुपरविजन भी होता है। तो क्योंकि बार अगर आपने डाल दिया और ऊपर से बार को पकड़ा नहीं आपने तो क्या होगा, बार ऊपर से हिलेगा ज्यादा, उसको फ्री एंड है तो नाचेगा ज्यादा, इधर से उधर होगा, तो ये क्या होगा नीचे का सर्कल आटी छूट सकता है एक खटी। तो ये नहीं होने के लिए क्या करना, पहले से उसको क्या करना पड़ता है, अपने को एज पेन लगा के पूरा सेट करना पड़ता है, पहले से कॉलम को बांध के रखना पड़ेगा, मतलब वो बार नाचे नहीं करके। और ऐसा एक बार नहीं है ना, हर एक बार को करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि उसका जो लेबर कॉस्ट है ना वो बहुत टेडियस होता है, बहुत महंगा होता है। एक तो उसको आटे करने का पैसा होता है और लेबर कॉस्ट का भी पैसा होता है। अगर कोई ने किसी ने अगर इसके ऊपर अगर रेमेडीज निकाली कि इजीली फिट होवे, दूसरा एक ऑप्शन क्या है मालूम है, वेल्डिंग का ऑप्शन है। और वेल्डिंग के लिए क्या है कि कंसल्टेंट क्या बोलते हैं कि वेल्ड करेगा कौन चेक करेगा, who will check the weld for every and each bar। क्योंकि क्या होगा अगर गलती से किसी ने क्या किया, ऊपर ऊपर कर दिया, मतलब समझा ना, टाका मारना और फुल वेल्ड उसमें फर्क है ना। टाका मतलब क्या, थोड़ा बट वेल्डिंग उसको बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा जगह पे ऐसा मारते जाना अंतर अंतर पर। लेकिन फुल वेल्डिंग में क्या, फुल वेल्डिंग मारना है। अभी फुल वेल्डिंग में सपोज अंदर किधर वॉइड छूट गया, कुछ हो गया, तो हु विल टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट, बराबर। तो ये चीज मतलब थोड़ी सी हेक्टिक होती है कि कैसे वो काम करेगा। तो ये अभी सपोज जस्ट लाइक हम लोग को देख रहा है कि ये कॉलम कितना थिक मतलब हाईली रेनफोर्स्ड है, वो भी उसके अंदर अगर आपको ये सब करना है, वेल्डिंग करना है, तो बहुत सारा ये लगेगा उसको, मतलब पहली बात तो मतलब वेल्ड करने के लिए अंदर बाजू से वेल्ड करने को उसको दिखेगा ही नहीं हर एक बार। फिर जब वाइल मतलब पूरा लिंक बनाया तो अंदर से उसको करने के लिए उसको आएगा नहीं वेल्ड, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, बट वेल्डिंग करना पड़ेगा, फिर वो फिजिबल नहीं है, उसमें से लोड पकड़ेगा नहीं, आपको फुल वेल्ड करना पड़ेगा। और फुल वेल्ड करना पड़ेगा वो भी कैसा करना पड़ेगा, आपको कम से कम अगर फुल वेल्ड करते हो ऑल साइड तो कम से कम वो भी वेल्ड आपको है ना कम से कम 6 से 8 इंच करना पड़ेगा बोथ साइड्स, जहाँ पे मतलब दोनों जगह सलिया टच होता है ना वो दोनों एंड पर, ये भी साइड में वो भी साइड। अब ये हु विल टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट, तो अभी तक कोई भी बंदा तैयार हुआ नहीं है कि मैं रिस्पांसिबिलिटी लूंगा और मैं करूंगा, बराबर। अभी थोड़ा हम लोग अगर सोचे कि इस बारे में, क्योंकि ट्रिमेंडस इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसके लिए, अगेंस्ट फॉर दैट लैपिंग। तो अगर ये लैपिंग का जो कॉस्ट है अगर सेम इक्वल भी रह गया ना तो सब लोग कपलिंग के पास आ सकते हैं, बराबर। दैट 8000 हम लोग सब लोग बेयर कर रहे हैं, 5000 सब लोग बेयर कर रहे हैं, तो अगर ये कपलिंग अपने को 5000 में ही मिल रहा है या फिर 5500 में मिल रहा है तो सब कोई 500 रुपए ज्यादा है ना, चलो जान दो, फिर इसके ऊपर आ सकते हैं। लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो हेक्टिक नहीं होनी चाहिए, वो 5000 में सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं खाली मटेरियल का 5000 होगा और बाकी का जो अलग। फिर उसके बाद टेंशन भी रखना पड़ेगा वो सही कर रहा है कि नहीं करेगा, वो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, क्योंकि एक सिंगल कॉलम नहीं, एट ए टाइम आपको करना है 4 कॉलम के लिए तो आप अच्छे से करेंगे, लेकिन पूरा फुल बिल्डिंग में करना है। आप देखो कोई भी चीज आती है नई नई तो नई नई सब उसको देखते हैं, एक बार जूनी होगी तो कोई देखते नहीं, फिर वो नहीं देखते ना, वही बहुत ट्रिमेंडस उसमें शॉर्टकम्स आते हैं, क्योंकि कोई अच्छे से नहीं करेगा तो फिर बाद में क्या बोलते हैं मतलब सिस्टम फेल है। फेल क्यों होता है, लैक ऑफ सुपरविजन के कारण फेल हो सकती है। अभी वो चीज आपको खास, अगर आप एलटीबी देख रहे हैं तो एलटीबी के थ्रू आपने इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए कि क्या चीज में वापरू, बराबर। अब ये ना सब देखिए, ये ना दैट इज मैंडेटरी है, ये नीड है, ये सबको लगना ही है। कोई भी चीज देखिए, कभी भी स्टील इंडस्ट्री 12 मीटर से आप कस्टमाइज भी करते हो ना तो 15 या 16 मीटर का मैक्सिमम बार आता है, लेकिन आपके लिए वो 30 मीटर का बार क्रिएट नहीं करेगा, बराबर। अगर
तो ये चीज में आप थोड़ा सा ये करोगे क्या, इनोवेशन, कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ऑप्शन के लिए, बराबर। तो आप मतलब सेवरल एमी स्ट्रक्चर्स आर देयर, मतलब जो स्किल कंसल्टेंट्स होते हैं ना, मोस्टली एमी स्ट्रक्चर्स ही रहते हैं, तो उनके पास जाके बात करके, या फिर बाहर टेक्नोलॉजी, अभी एक बंदे ने बोला कि हम लोग उधर फेरोक वापरते का अमेरिका में, बट डोंट कॉपी दैट थिंग्स। कैसा होता है जनरली क्या है कि जहाँ पे जो उगता है वो वहां पे वापरा जाता है, मतलब कैसा मालूम है ना, कि जो जहाँ का वेस्ट है ना वो वहां वापरना है, उधर का वेस्ट मेरे को इधर लाके वापरा, तो क्या हुआ, मेरा वेस्ट तो ऐसे पड़ गया, उल्टा मैंने बाहर का खत्म कर दिया, बराबर। तो अपने को क्या ध्यान में रखा, इनोवेशन कैसे क्रिएट करनी चाहिए कि मेरे पास जो वेस्ट हो रहा है ना, मेरे को वही वापरने की बुद्धि आनी चाहिए। और वो अगर देखिए, क्योंकि वो सामने दिखता है, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे आपको, अगर वो वेस्ट के लिए मेरे को इतना पैसा लेके आके उसको यूज करना है, उससे अच्छा में मेरा क्यों नहीं वापर। तो ये वेस्ट वापरने के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे को कौन सा टाइप का वेस्ट वापर रहा है। अभी देखो जो प्लास्टिक है वो एकदम फर्स्ट क्लास एग्जांपल है आपके पास, तो प्लास्टिक के आपको जैसा चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हो, बराबर। अभी तक ना किसी ने प्लास्टिक टाइल्स बनी नहीं है, प्लास्टिक एग्रीगेट्स भी बन गए हैं, बराबर। प्लास्टिक से आप मतलब पीवीसी फ्लोरिंग, एक रबर का फ्लोरिंग तो ऑलरेडी पहले से ही है। अगेन सर जिप्सम, यस जिप्सम भी, जिप्सम तो ऑलरेडी हम लोग वापरते ही है। और no I mean as an example, I mean as an example, yes, because एग्जांपल यस, वो भी ऐसा ही था कि जिसम में कितना बड़ा वेस्ट था और वो अपने पास ही क्रिएट होता है, फिर हम लोग वापर रहे, तो अपने पास क्रिएट होकर हम लोग वापर रहे, तो दैट इज बेनिफिशियल टू आवर कंट्री ना, क्योंकि हमारा ही वेस्ट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा ही सोचना है कि अभी देखिए प्लास्टिक को बहुत सारा सर्च करने का ना जरूरत है, इतना प्लास्टिक डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो वापस रीयूज भी होगा ना, तो उसका जो परसेंटेज बढ़ता है ना, उसका अपने को दुख नहीं होगा, क्योंकि कितना भी बढ़ने का अपने पास जगह है भरने के लिए, तो इज बेटर। खाली लैंडफिल करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं। सेम लेके भी ये स्टील का है, और कोई अगर इसका अच्छा इनोवेशन ढूंढे, किसका, लैपिंग का, लैपिंग का अच्छा, अगर अभी आपको ये भी देखना है, मतलब सपोज दोज आर वांट टू आफ्टर इंजीनियरिंग की थोड़ा इसमें जावे, कहाँ पे डिग्री के बाद एमई में जावे, तो उसने जरूर ये सर्च करना चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, आर&डी करनी चाहिए किसके ऊपर, कि लैप लेंथ हम लोग कैसे रिड्यूस करें, क्योंकि सबसे कॉस्टलीस्ट आइटम है ना स्टील, मतलब सिविल इंडस्ट्री में वो स्टील है सबसे कॉस्टलीस्ट आइटम, और उसको आपको बचाना है। आप उसके लिए अगर आप कुछ भी काम करते हो, कोई भी बिजनेस इसके रिलेटेड आप करोगे ना, तो डेफिनेटली मतलब आपको मार्केटिंग क्या, मतलब एक बार पता चलेगा ना ऐसा ऐसा इसने बनाया है, कम से कम देखने के लिए 10 लोग आएंगे शुरुआत में ऐसे ही, और एक बार किया ना तो फिर आपको टाइम नहीं है कि मतलब ये बिजनेस आपका बूम होने के लिए। तो ये चीज मतलब कैसा कि नीड है, नीड, आपको नीड पे ध्यान रखना है, प्रायोरिटी पर ध्यान रखना है, हाँ, और जो मैंडेटरी आइटम्स है ना उसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपको प्रॉपरली एलटीबी में जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि प्रायोरिटी, फिर नीड और मैंडेटरी आइटम्स है, ये 3 आइटम है ना आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। अभी स्टडी करने के लिए थोड़ी सी तो आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना, कि कौन सा चीज में क्या है, तो ये चीज लगने ही वाली है। सपोज अगर आप प्लास्टिसाइजर बनाते हो, हाँ, तो क्या होगा कि कंक्रीट तो चलने ही वाला ही है, बराबर। अभी लॉन्ग लाइफ चलने वाला है तो प्लास्टिक मेरा चलेगा। अगर सपोज आपने अगर प्लास्टिक एग्रीगेट्स कंफर्मली आपने ऐसा नक्की कर दिया कि बिल्डिंग के लिए भी यूज हो सकता है, अभी तक तो रोड के लिए अच्छे से यूज हो रहा है, लेकिन आपने अगर थोड़ा और इनोवेशन करके बिल्डिंग के लिए भी उसको यूज करने का ये प्रूफ किया, तो क्या होगा कि कंक्रीट तो लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, बराबर। तो इंस्टेड ऑफ हम लोग क्वेरी इतना खोदने के लिए, माइंस खोदने के लिए, पत्थर निकालने के लिए, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास तो प्लास्टिक अबंडेंट मिलता है, वेस्ट प्लास्टिक, तो फिर ये चीज आपको अच्छे से यूज कर सकते हैं, थोड़ा ना दिमाग पर ये डाल के। और इसमें भी देखो मतलब दीपेश सर का ऐसा कह रहा है ना कि हम लोग स्ट्रीम टू स्ट्रीम एक इकट्ठे होना चाहिए। अभी मतलब कैसा कि जो प्लास्टिक के लिए आप आओगे तो जो केमिकल इंडस्ट्री भी आ गए ना, प्लास्टिक इज नथिंग बट केमिकल, तो वो केमिकल इंजीनियर्स है, उनके साथ भी अपने साथ मतलब ऐसा ट्यूनअप रखना होता है कि थोड़ा सा अच्छा ट्यूनिंग बन गया तो वो लोग भी हेल्प करेंगे, फिर दोनों के मिलन होने से एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है, और जो भी क्या होगा लॉन्ग लाइफ यूज हो सकता है, क्योंकि इसने इसके लिए अभी मे भी सोचते भी होंगे, तो अगर जो कोई पहला ढूंढेगा और ये चीज करेगा तो फिर उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, कि जो आपको पता है पेटेंट आता है, पेटेंट, तो पेटेंट भी आपको मिल सकता है, मतलब। और सिविल इंडस्ट्री में इतने सारे आपको चांसेस है ना पेटेंट बनाने के चांसेस है। बाकी लोग कुछ भी पेटेंट बनाते हैं, मतलब घड़ी का कांटा घूमता है ना उसके लिए भी पेटेंट बनता है, एक छोटी सी चीज है, हाँ। तो फिर ये तो अपना कितना मतलब आप देखो घड़ी का कांटा बना तो घड़ी वापरने के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये चीज है आप क्या बना रहे हो, आप घर बना रहे हो, आप रोड बना रहे हो, आप डैम बना रहे हो, यस एवरीथिंग इज फॉर नेशन, एवरीथिंग इज फॉर कंट्री, एवरीथिंग इज फॉर पीपल, बराबर। मतलब और ये नीड है, हर एक को मैंडेटरी नीड है, उसको वापरना ही है, यूज करना ही उनको। अगर इस बारे में आप सोचेंगे ना तो आपको कभी ऐसा लगेगा ना कि मेरे लिए क्या सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिधर भी देखोगे ना वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी 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 ही है।
Yes, थोड़ा ना आपको absolutely. पॉजिटिव सोचना है. Yes. Right. So thanks a lot, sir, for those actual practical examples, because we all want to innovate, we want to research, we want to take our country ahead, we want to be entrepreneurs. But these ideas, I do believe, would really help. And to get such ideas, what is most important is industry exposure at first place. Okay, घर के चार दीवार में बैठ के नहीं आएगा. We need to have good amount of industry exposure, and while having that exposure, not just that we are watching it, but with a keen eye, right? So taking forward, because yes, taking forward, LTB में करना क्या क्या है, mindset क्या होना चाहिए, sir has explained it very thoroughly. Simple 4 stages in LTB as we working with you all. This is not a batch, this is not a course, this is not where you all will be together at the same stage, right? यहाँ पे अलग अलग stages होंगे, जहाँ पे जो जब पहुंचेगा will be taking that journey ahead. First is whosoever are interested, whatsoever problem statement probably you are thinking on, right? Whenever you think, form your groups, right? Form your groups के लिए क्या criteria, even that I'll tell. Come up with a problem statement that you are interested in. हमारे बोलने से नहीं होगा, it should be of your interest. And ये problem statement आनी है, existing problem statements आप search भी कर सकते हो, या तो फिर आपके exposure पर से is there some activity and we feel that it can be done some other way. There are numerous examples, जैसे सर ने अभी 4-5 examples इतने डिटेल में कहे. Similarly, every single advancements is an example. For example, RCC से हम लोग अभी My1 Aluminium Formwork पे आ गए, I think, right? Once you're done with this, submitting your problem statement, we'll review it. You'll be assigned a mentor. We'll be working jointly on solutions with our industry experts as well, right? Whatsoever resources are required. Our third stage will be to work towards publishing a research paper, because that will give you a proper direction. Directly business model पे जाना मतलब कोई तो aspect छूट सकता है. So first of all, once we are okayish with, once we shortlist, once we zero down with some of the solutions that you have worked out, we'll work with publishing the research paper. That will be our third milestone. And then making that solution into a viable business model will be the last stage. ये जो third step है, publishing research paper, it's a very important stage, because ये करने के वजह से आप में से काफी लोग अभी अगर कॉलेज में भी हो, this will do your work of college final year project as well. So basically the concept that we are promoting, third year में जो आपको सेमिनार करना है, fourth year में जो आपको प्रोजेक्ट करना है, इसी लाइंस पे करो, इसी लाइंस पे करो, okay? And the last stage will be building a viable business model. Sir, viable business model क्या होगा, कैसे होगा, that is not today's discussion. Let's first focus on first step, submitting problem statement. Then let's see what solution can we come up with. Then let's see if we can document that solution well with right research on a research paper, right? Then we'll go for making it a viable business model. What right sales technique, what should be the pricing of it, how do we mass manufacture it, can we tap with some company who's already in this area, and can we approach them? That shall be it, right? So basically करना तो सब कुछ आपको है. What is know-how helping you here it with? सबसे पहले we are motivating you, we are looking to push you to think in this direction. काफी बार आप अकेले होके will be helping you to form groups like-minded people, right? Will be helping you secure expert supports and industry connections, will be helping you with paper publishing and the market research. That's the help you can expect from know-how, right? Ideally what we feel is problem statement जैसे यहाँ पे भी whenever you do our courses of civil architecture module 1 module 2, we get so much so industry exposure. बताते बताते विवेक सर भी आपको काफी चीजें बता देते हैं कि currently ये चीज हम ऐसे कर रहे हैं, इसमें और कैसे कैसे कर सकते हैं. Those can be problem statements for you, or else it can be something that you have chosen for yourself as well, right? Once the problem statement is done, for the solution, interdisciplinary approach will be given preference. Just like Vivek sir was doing right now, he tried to make it a point कि आपका जो कुछ भी ग्रुप होगा, यहाँ पे काम करते हो तो आपका जो कुछ भी ग्रुप होगा, try to make it a point कि उसमें एक सिविल के हो, आर्किटेक्चर के हो, मैकेनिकल के हो, ENTC के हो, केमिकल के हो.
for know-how what's important criteria to accept you as a group is आप में से कोई तो एक एटलीस्ट आपके ग्रुप का कोई तो एक या दोनों मेंबर एटलीस्ट know-how का स्टूडेंट हुआ होना चाहिए. बाकी के 3-4 लोग आप आपके फ्रेंड सर्कल के आपके पहचान के भी लेके आओ. It is totally okay because just like we say in all of our courses right now, if you're sitting in your room, have a look around. There's not a single product that is a product of one engineering, right? We'll need various peoples, probably even accounts, finance, marketing, graphic designing at later stage. But first of all, try to bring in as many experts as possible. If not, even we'll be getting them, right? So the first step that is important for you is to think on what area you want to take up. Okay. If whosoever make up their mind to do it, so that's the simple steps. Get in touch, let's discuss your problem statement, let's assess how well you have thought on it, how serious are you actually, how dedicated are you, या फिर सिर्फ एक करने के लिए करके देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं. ये approach won't do, because when you're working on this path there'll be many highs and lows. If you're not really committed, you'll easily give up, right? So make sure अगर आप करना चाहते हो, make sure if you're dead serious about it. Okay, that's how we'll progress on it. That these are the steps, that's how we'll do it. And so it will be like a very simple thing. Every month we'll be keeping 1 or 2 sessions on this where we'll be reviewing your updates in an open forum. Baki one-on-one guidance though it will be going on comparatively. And we can conclude the session by a simple remark that business is now not only a choice but rather an only option with you guys, because jobs जैसे आप चाहोगे not necessary वैसे है मार्केट में. it will take years and years. तो अगर आपको आगे जाके बिजनेस करना है फिर बहुत सारे जॉब्स हैं. so what do you mean by this? अगर आप आज जॉब ज्वाइन करते हो और अगर आपके दिमाग में है कि मुझे 3 साल बाद, मुझे 5 साल बाद बिजनेस करना है, आई हैव टू डू सम प्रोडक्ट, फिर आपको आपका जॉब नहीं लगेगा, कितनी भी सैलरी हो फर्क नहीं पड़ता. You will be just working there day and night to have immense of industry exposure, right? For doing business, we need we need disruptive ideas. Disruptive ideas कहाँ से आएंगे? By exposure, right? So let's discuss, let's take it ahead. Today's was just an orientation session to make you understand कि आप लोगों को बिजनेस की नहीं जरूरत है, इंडस्ट्री को आपके इनोवेशन की, आपके रिसर्च की जरूरत है. Come forward, this is the perfect time for the youth of today to seize this opportunity, right? And get into innovation, research, manufacturing, production, services, and this kind of professions as well, right? So anything you'd like to add, so, and then we'll open it for some Q&As from the students. So It's over. It's okay. okay, yes, perfect. So yes, are there any questions, Vikram? Yes, sir, I wanted to ask the stages, as you mentioned, that first we'll take out a topic and then we'll do some research on it. Then we'll take a research paper on it. So, sir, are there any next steps or any standard format we should assume? Sorry, can't hear you. Present a raw data. So we're going to just present a raw data. So, is there any format we should follow or any expert guidance for that? Yes. So the first thing, first things first, let's first discuss your problem statement. So whatsoever problem statement you have got in your mind, working on research paper after having a solution are the second and third stages respectively, right? So let's first freeze your problem statement, whatsoever you have, put it out to your mentor. So right now Suyash is taking care of this activity. Again, 2 to 3 mentors will be allotted to you, right? So so get in touch with your mentor on the problem statement that you have in your mind, right? So that's the first checkpoint. Research paper कैसे होगा? That's a very guided process. So and a very straightforward. Many of us have already done it in our college days. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, Sai Teja would like to add something. Sir, I have a doubt, sir, regarding the curing compounds. Can I ask a question to Vivek sir once? Sir, can we take questions on? Yes. Yes, please go ahead. Sir, I've actually visited GBC, sir, International Green Building Congress, wherein
a big a big exhibition was held in our state, sir, Hyderabad. It was a 3-day workshop. So, sir, there was a material called as granusil, which was actually manufactured from a raw material named amorphous silica. So, so I did not understand, sir. So he said that we can use it as a coolant for roofs. So one more thing, sir. So if we have a raw material and there are many checks to do for that, sir. So if he's saying a coolant, I guess we have to do the temperature checks, and there would be many checks. Yes. And to Yes. see for how many degrees or how many degrees is it actually giving relaxation at. So say if the overall temperature would be 50, then we should check it for 45 degrees. So I guess there are a lot of research and development which are like going on behind this. See so that you are just finish yourself. Yes, sir. So being civil engineering students, we won't have much exposure towards chemical side, sir. Right? Exactly. Chemical R&D. Yes, exactly. So Yes. how exactly should we bridge that gap, sir? Can you please throw a light on that? See what happened ना कि देखिए ये इनोवेशन जो आती है ना किस लिए आती है, मतलब अपने नीड के लिए आती है ना. अपने पता है कि अगर मैंने बिल्डिंग बनाई है हाई राइज बिल्डिंग बनेगी तो क्या होगा, जो टॉप फ्लोर्स है ना, टॉप फ्लोर्स उसमें क्या होता है बोलो मैं, जनरली पीपल्स आर अपार्ट फ्रॉम मुंबई द रेस्ट ऑफ द ये सिटीज में क्या होता है कि टॉप फ्लोर कोई बाय नहीं करते. क्योंकि टॉप फ्लोर बाय नहीं करते इसका सबसे पहला रीजन क्या होता है कि लीकेजेस हो सकता है. दूसरा रीजन क्या होता है कि वहां पर है ना टेम्परेचर बहुत होता है, कि डायरेक्टली वो स्लैब गर्म होता है, फिर नीचे क्या होगा पूरा, मतलब अगर नीचे सपोज मेरा बिल्डिंग 12 स्टोरी का है, 11th फ्लोर पर अगर फैन 3 पे चल रहा है तो मेरे घर पे फैन 5 पे चलेगा टॉप पर, बराबर. क्यों? तो मेरे को मतलब जैसे स्लैब ज्यादा गर्म होगा वो जैसे हीट नीचे थ्रो करेगा, बराबर. तो ये चीज के लिए जनरली टॉप फ्लोर्स आर ऑलवेज वैकेंट इन रेस्ट फ्रॉम मुंबई में उल्टा है. मुंबई में टॉप फ्लोर्स पहले जाते हैं और बाकी फ्लोर्स कम जाते हैं, लेट जाते हैं. लेकिन वहां पर बाकी चीज में ऐसा नहीं है. अभी इसके लिए क्या किया था, फिर ये उनके क्या था, एक नीड था. ये नीड से क्या किया, फिर ये जो केमिकल कंपनीज है उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया. और रिसर्च चालू होने के बाद फिर आपको मालूम है ये और एक चीज है कि जहां पर आप कभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे जाएंगे तो वहां पे मतलब भूषण स्टील का कारखाना ये है, प्लांट है बड़ा, स्टील का प्लांट है बड़ा. तो उसमें भी देखो आप जहाँ भी मतलब ऑल ओवर इंडिया कहाँ भी रहेंगे ना, वो लोग ना ये भी यूज कर सकते हैं कि वो लोग उसके टीन जो ऊपर कवर्ड टीन रहता है, क्योंकि वो प्लांट है ना कभी कवर्ड विथ टीन होता है, और टीन के ऊपर भी है ना ये कोट आप लगा सकते हो, बराबर. टीन के ऊपर दिस इज क्यूरिंग कंपाउंड, और उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं हीट गार्ड, दैट इज SRFNs. डोंट कंपेयर दिस विद दैट, दिस इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट. क्यूरिंग कोट उसको ऊपर नहीं लगाना है, बराबर है. आप अगर ऐसा सोचते हो तो गलत है. क्यूरिंग कोट इज ओनली फॉर कंक्रीट, दैट इज that shows particular that Parquet 200 is only for concrete, and for that SRF paint it is called a heat guard. तो heat guard जो चीज है वो आपको कहाँ पे लगानी है, वो रूफ पे लगानी है. इवन आपके बिल्डिंग के रूप पे भी आप लगा सकते हो, आप फैक्ट्रीज के रूप पे भी लगा सकते हो, आप टीन के रूप पे भी लगा सकते हो. और उसमें कैसा इनका दावा है, और हमने 10 डिग्री तो कम देगा अपने को. सपोज नॉर्मल अगर 40 डिग्री का सन है तो आपको टेम्परेचर है ना 30 होगा. अगर 30 का है तो आपको फील होगा कि मैं पानी में चल रहा हूँ. 20 हो जाएगा वो, मतलब एवरी डे एवरी टाइम इट शुड बी -10 डिग्री. तो इनका अभी देखिए इससे क्या होता है, अगर आप इट इज नॉट मैंडेटरी. आपको कैसा होता है कि ये मतलब सेल्स पर्सन आते हैं आपके पास, ऐसा ऐसा है वैसा है, तो आपने क्या करना है, उसके पास से सैंपल लेना है. सैंपल फ्री में मिलता है. सैंपल लेके आपको ना एक टेस्ट करनी है. देखो सही हो, अभी सर ने कैसा बोला कि आपको ऐसा ही नहीं करना है क्या कि जानो चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, लेकिन जो टेस्ट करनी है ना उस पे आपको यही नजरिया वापरना है. चला तो चला, बराबर. अगर टेस्ट सक्सेसफुल है तो विल गो इनटू इट. सक्सेसफुल नहीं हुआ तो छोड़ दो, नेक्स्ट दूसरा वेंडर आएगा, तीसरा वेंडर आएगा. क्योंकि देखो ये नीड तो होनी है. और जब ये टेस्ट हमने की तो विल मतलब रियलाइज दैट कि मतलब क्या बोलते हो हम लोग, दोपहर के 3 बजे भी है ना आप अगर नेकेड पैर से चलेंगे टेरेस पर ना, यू फील कि आप पानी में से चल रहे हैं. यस, मतलब इतना वो ठंडा था, बराबर. तो मतलब डायरेक्टली इतना आपको टेम्परेचर वेरिएशन तुरंत पता चलता है. तो ये चीजें है ना बहुत सारी आती है. इवन मान लो आपको कि टॉप टेरेस पर हम लोग चाइना मोज़ेक करते हैं, अगर बंगलो है तो अपना, पता है चाइना मोज़ेक,
मतलब सिरामिक के चिप्स रहते हैं, वो भी है ना वही इफेक्ट करता है, क्या सन रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उससे ये बेटर है। अभी उसमें और भी आए हैं, मालूम है आपको, डायरेक्टली एसआरआई टाइल्स भी आई है, एसआरआई टाइल्स कि वो है ना 70% हीट रिफ्लेक्ट करती है, कितनी 70% हीट रिफ्लेक्ट करेगी, और जो पेंट है ना, पेंट 85% हीट रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज एसआरआई पेंट 85% रिफ्लेक्ट करता है, टाइल्स है आपकी वो 70% रिफ्लेक्ट करती है। अभी देखिए दैट डिपेंड्स है ना कि आपको कितना खर्चा करना है, आप समझे कि कितना खर्चा करना है, आप वैसा यूज कर सकते हो। आपको मतलब सी कि आपका टॉप टेरेस है, वहां पे ना आना जाना बंद है, लोग जाते नहीं है आप, तो वहां पे आप पेंट आराम से मार सकते हो, क्योंकि कम से कम, लेकिन आपके घर के टेरेस पे नहीं मार सकते हो ना, क्योंकि उधर आपको एवरी नाउ एंड देन आप जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, खराब करेंगे। लेकिन जहां पर टॉप टेरेस है, बिल्डिंग की टॉप टेरेस हार्डली यूज, कोई यूज नहीं करता है, बंद ही रहता है हमेशा, तो वहां पर आप ये यूज कर सकते हो। इवन फैक्ट्री रूफ है, उसका फैक्ट्री का शेड है, उसके ऊपर मतलब जल्दी क्या एग्जॉस्ट पे ही चलती है वो, बराबर। लेकिन होता कैसा है, इवन स्टील में ना बहुत हॉट है, आपने कभी और विजिट किया होगा ना, आप उधर मतलब 10 मिनट के ऊपर रुक नहीं सकते हो, इतना मतलब उसमें अंदर ही रहता है। हाँ, तो ये चीज में है ना, अगर उनका रूफटॉप अगर आपने ये कर दिया, तो कम से कम उनका टेलीफोन मेंटेनेंस कभी कभी बराबर साल में एक आध बार गया तो गया, अदरवाइज मतलब क्या, अगर रोज का ट्रैफिक है, फुटप्रिंट रोज के पड़ने वाले हैं, तो क्या होगा, वो उखड़ सकता है पेंट, लेकिन कभी कभी जाने वाला है तो इतना तकलीफ होता नहीं। तो ये चीज दोनों अलग है, डोंट कंपेयर दैट क्यूरिंग कंपाउंड और एसआरआई पेंट। एसआरआई पेंट इज डिफरेंट, curing compound is different. I think you must be clear, no? Now? Yes, sir. I got a clear idea. Sir, so another doubt. Sir, do you think, can you please, civil engineering students should also increase the chemical knowledge? Not in depth, but a bit. नहीं, सी ऐसा नहीं सोचना कभी, क्यों कि देखिए अभी किस्सा है कि आप सिविल इंजीनियर हो क्या, आप केमिकल के लिए इतना सोच रहे हो ना? Yes. तो वो भी सोचेगा ना अपने लिए, why do you think so? वो भी सोचेगा। So even we'll get so yes, we'll get even them on our platform, because it's a very simple thing. We many a times are the end consumers, that is actually we'll be needing their products, so which in turn it translates to they are dependent on us for giving them some applications, right? Yes. So I mean, it's a very perfect time to collaborate with them, so that we can tell them of our problem statements, of the areas where we want improvements. They can think of, okay, how can this be done, and we jointly work to make things happen. Yes, sir. Right. Thank you, sir. Great. So yes, sir, got it. Yes. So this was a short 1 hour session on what is this concept all about, what is the approach you all need, right? And so yes, we'll be taking it forward. Already we have received few interest regarding some problem statements that the students are thinking on. We would be curating them at our end, as also we would be wanting to receive few more from your side, and we'll be taking the next session on the same lines, right? So after this session, who all are genuinely interested to be a part of this initiative, please let your respective mentors know, and we'll be adding you to the list of our invitations for the upcoming sessions, right? So yes, thanks a lot, sir, for being with us, for really motivating the students to think on the lines by giving them some practical experience, examples, because entrepreneurship is taught in colleges as well these days, but in absence of some practical examples, as it समझ में सब कुछ है पर करना क्या है, many a times students don't get a clear vision करना कैसे है, but then here with this examples I'm very sure they would be thinking now in the right direction, and let's hope for some good business ideas, right? So we'll conclude our today's session. Thanks a lot all the participants, thanks a lot all the students, and thanks a lot, sir. Thank you very much, all the best. Yes, take care.